Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter states of matter. Now let us start. The first question is, name the two intermolecular forces that exist between the HF molecule in liquid state. देखो बेटा, HF molecules के अंदर कौन से टाइप की forces होती हैं? ये आपका होता है प्लस डेल्टा, दिस इज माइनस डेल्टा, दिस इज प्लस डेल्टा एंड दिस इज माइनस डेल्टा. तो हेयर विच टाइप ऑफ फोर्सेज इज प्रेजेंट? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. In liquid state, there is a dipole-dipole interaction and hydrogen bonding because HF is a polar covalent molecule. Okay. Now next is the physical properties of ice, water and steam that are very different. What is the chemical composition of water in all the three states? देखो बेटा, जो आपका water है, physical property of ice, water and steam that are very different because they are found in different states. Ice is found in solid, water is found in liquid and steam is found in vapor state. Okay, the chemical composition of water in all the three states that is same, means water. Okay, now next is the behavior of matter in the different states is gone by the various physical laws. According to you, what are the factors that determine the states of matter? देखो बेटा, इसमें हमें वो बताना है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं ये कौन से फैक्टर हैं. टेम्परेचर है, प्रेशर है, मास है, वॉल्यूम है. दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. कौन से टेम्परेचर पे जो है सॉलिड मिलेगा, लिक्विड और गैस. ठीक है, प्रेशर क्या होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी. दैट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, what would be the SI unit for the quantity PV square T square by N? ठीक है, ये आपका है बेटा. इसमें SI यूनिट बतानी है. तो प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करते हो. ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होती है उसका होल स्क्वायर, एंड टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोल. तो न्यूटन मीटर फॉर K2 पर मोल. ओके, सो दिस इज द SI यूनिट. नाउ नेक्स्ट इज, in terms of Charles law, explain why minus 273 degree Celsius is the lowest possible temperature. देखो बेटा, according to Charles law, Vt is equal to V0 1 plus T by 273. At minus 273 degree Celsius, Vt is equal to V0 1 minus 273 by 273, that is equal to 0. At minus 273 degree Celsius, the volume of gas that become 0, and below this temperature the volume become negative, which is meaningless. Okay, now next is, how much time would it take to distribute 1 Avogadro law of wheat grains of 10 to power 10 grains are distributed each second? देखो बेटा, एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, एंड एन ए किसके इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है. तो इसको हम कन्वर्ट द टाइम इनटू ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. अब इसमें टाइम रिक्वायर्ड कैसे आ जाएगा? टोटल ग्रेन्स डिवाइड बाय ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड. टोटल ग्रेन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट 10 टू पावर 10. सो 6.022 इंटू 10 टू पावर 13 सेकेंड. तो ये आपका आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड डिवाइड में 365 डेज होते हैं. ठीक है, 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड, एंड दिस इज चेंज इनटू ईयर्स. तो ये आपका टाइम इसमें आ जाएगा ईयर्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, what will be the molar volume of nitrogen and argon at 273.15 Kelvin and 1 atmosphere? Every gas has 22.4 liter volume बेटा. ठीक है, at 273.15 Kelvin and 1 atmosphere pressure. तो आपकी जो वॉल्यूम पूछी थी बेटा, that is 22.4 liter. Okay, now next is, the pressure exerted by the saturated water vapors, that is called aqueous tension. What correction term will you apply to the total pressure to obtain the pressure of dry gas? तो बेटा P dry gas के लिए क्या होता है? P moist gas means total pressure minus aqueous tension. ओके, ये बन जाएगा.
Now next is, name the energy which arises due to the motion of atoms or molecules in a body. How is this energy affected when the temperature is increased? देखो बेटा, एनर्जी कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी होती है। जो एनर्जी हमें मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। और उसको हम टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? बढ़ती जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, explain why Boyle's law cannot be used to calculate the volume of real gas when it is converted from its initial state to final state by the adiabatic expansion. एडियाबैटिक क्या होता है? जिसमें से हीट ना तो गिवन होती बेटा, ना ही उसमें से रिलीज होती। ना तो उसमें हम हीट दे सकते हैं, ना ही उसमें हम हीट रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ इज अप्लाइड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन ओनली। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशन में ही बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, अदरवाइज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर if the pressure is increased on the gas and volume decreases and vice versa, but when we fill air in a balloon the volume as well as pressure increases. Why? देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लॉ होता है बॉयल्स लॉ, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, कि गैस का मास फिक्स्ड होना चाहिए। बट हम बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एयर इनटू द बैलून, then we are increasing the mass of the air inside the balloon. बैलून के अंदर हम एयर का मास इंक्रीज करते हैं, so that's why this law is not applicable. Okay, now next is 2 marks question. Question number 1, on the basis of intermolecular forces and thermal energy explain why a solid has rigidity but liquid don't have rigidity. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि गैस हैव हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी बट द लिक्विड एंड सॉलिड हैव पुअर कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? सबसे फर्स्ट आंसर आप क्या बता सकते हो? क्योंकि इनके अंदर बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट लिक्विड्स के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दैट आर क्लोजली पैक्ड। ओके, और गैसेस हाई कंप्रेसिबल कैसे हैं कि गैसेस जो होती हैं वो हाई, क्योंकि इनके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो आसानी से क्या हो जाती हैं? दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। बट लिक्विड और सॉलिड में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। ओके, नाउ सी द आंसर। देखो बेटा, because in solid intermolecular forces are very strong and predominate over the thermal energy, but in liquid state these forces are no longer strong enough. Okay, now second question है, gases compressible क्यों है? क्योंकि इनके अंदर very weak intermolecular forces and high thermal energy, so the molecules of gases that are far apart, so gases are highly compressible. Okay, now next question is, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degrees Celsius? देखो बेटा, apply Boyle's law because volume is given and one pressure is also given. Okay, then pressure P1 1 bar is given, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V1 500 डेसीमीटर क्यूब, V2 200 डेसीमीटर क्यूब, देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 कैलकुलेट करेंगे बेटा, P1 V1 डिवाइड बाई V2, दिस इज 1 बार, 500 डिवाइड बाई 200 दैट इज 2.5 बार। ओके, सो दिस इज द प्रेशर। तो यहाँ पे बेटा बॉयल्स लॉ लगेगा बिकॉज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, P1 V1 डिवाइड बाई P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, ये आपका जो है बॉयल्स लॉ ये लगेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज a human adult breathes in approximately 0.50 liter of air at 1 atmosphere with each breath. If an air tank holds
10 liter of air at 200 atmosphere, how many breaths the tank will supply? देखो बेटा, here volume is given, that is V1, ठीक है, and this 10 liter of air at 200 atmosphere, it means pressure P1 is given, okay, this is V1 एंड ये आपका जो है बेटा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्रेथ्स निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब प्रेशर आपको गिवन है 200, वॉल्यूम 10 है, ठीक है, P2 1 एटमॉस्फेयर है एंड V2 हमें निकालना है, तो V2 आएगा आपका 2000। अब हमें नंबर ऑफ ब्रीथ्स निकालने हैं, तो टोटल वॉल्यूम हमारी 2000 है, सॉरी 2000 आपकी जो टोटल वॉल्यूम है, और कितने ब्रीथ्स थे अप्रॉक्सीमेटली 0.50 लीटर, तो आप यहाँ पे 0.5 लीटर लिख सकते हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 4000, ओके। नाउ नेक्स्ट इज a gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of Hg and 25 degrees Celsius. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 milliliter at the same temperature? ओके अब वॉल्यूम गिवन है बेटा, प्रेशर गिवन है, V2 गिवन है, P2 गिवन है और P है, P हमें निकालना है, ओके। तो अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, बॉयल्स लॉ। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 745 mgHg है, ठीक है, V1 आपका 250 ml है, P2 आपका ये निकालना है और वॉल्यूम इज़ 200 ml गिवन। देन P2 कैसे कैलकुलेट करोगे, 745 mmHg मल्टीप्लाई 250 डिवाइड में 200, देन 931.25 मिलीमीटर Hg। एडिशनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1, P2 आपको गिवन है 931.25, P1 745, दैट इज़ 186.25 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज calculate the total mass of electrons present in 1.4 gram of dinitrogen gas. So in this case what will be formed here, इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने बेटा, 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन मास इनटू द मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस दैट इज 1.4 है आपको, ठीक है, डिवाइड बाय 28 मीन्स मोलर मास है। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है, 14 मल्टीप्लाई 2 ना, दैट इज 28, ये गिवन है, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.05 मोल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब बेटा 1 मोल किसके इक्वल होता है, देखो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपको ये मोल्स आपने कैलकुलेट किए, ये आपने यहाँ लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई करो, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 0.3011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल नाइट्रोजन के किससे बने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने से बने होंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 moles of gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar. R value is given, that is 0.083 bar decimeter cube per Kelvin per mole, okay. Now what will be given here, number of moles is given and we have to calculate the temperature. PV is equal to nRT, so here T is equal to PV by Rn. तो प्रेशर इज गिवन, दैट इज 3.32 बार, वॉल्यूम इज गिवन, आर वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एंड एन वैल्यू इज 4 मोल्स। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज द आंसर, दिस इज 50 केल्विन। नाउ नेक्स्ट इज
34.05 milliliter of phosphorus vapors weigh 0.0625 gram at 546 degrees Celsius and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? देखो बेटा, here volume is given, this mass is also given, pressure is given. तो PV is equal to nRT. अब PV किसके इक्वल होता है? nRT पे होता है. अब बेटा देखो n किसके इक्वल होता है? PV इज इक्वल टू स्मॉल m, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू R इंटू में T. अब बेटा मोलर मास ऑफ फास्फोरस ये आपको गिवन है, गिवन मास ये आपका है ही. तो m इज इक्वल टू, अब हमें मोलर मास निकालना है, m इज इक्वल टू स्मॉल m RT बाई PV, ये होता है. ठीक है. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द आंसर? देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो. स्मॉल मास आपका यहाँ है, R वैल्यू गिवन है. ठीक है. टेम्परेचर 819 केल्विन है. आपको जो है प्रेशर गिवन है आपका यहाँ पे. ठीक है. एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन. देन व्हाट इज द आंसर? 1250.4 ग्राम पर मोल. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 degree Celsius and 1 bar pressure. R value is given here. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. सेम फॉर्मूला इज अप्लाई हेयर. ठीक है. PV इज इक्वल टू nRT. तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M. ओके. अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड 8.8 ग्राम ऑफ CO2 पहले से ही है. ठीक है. तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे इसको. यहाँ देखो m इज़ गिवन हेयर. ये आपका जो है यहाँ आ जाएगा मास 8.8 ग्राम, R वैल्यू इज़ गिवन एंड टेम्परेचर इज़ 3.04.1 केल्विन, pressure is 1 bar and mass is 44. Then after calculating, this is the volume of the gas. Okay. Now next is at 0 degree Celsius the density of certain oxides of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxides? देखो बेटा डेंसिटी किसके इक्वल होती है? देखो अभी हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, यही होता है. ठीक है. तो आपने यहाँ से V की वैल्यू निकाल के पुट करो. तो डेंसिटी हमारी क्या आई थी? डेंसिटी इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय RT. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पुट करो, स्मॉल m बाई कैपिटल M. ठीक है. तो ये डेंसिटी बन जाएगी m बाई V इज इक्वल टू D बन जाएगा और ये MP बाई RT आपका यहाँ आ जाएगा. दिस इज द रिलेशनशिप. नाउ नेक्स्ट व्हाट विल बी द गिवन बेटा? यहाँ पे क्या गिवन है? देखो अब टेम्परेचर और डेंसिटी वो सेम है, R कांस्टेंट है. तो P1 M1 डिवाइड बाय P2 M2 ये कर सकते हो. हम इक्वल साइन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो आप. तो 2 बार इज़ द प्रेशर, M1 आपको निकालना है, P2 आपका 5 बार है और M2 आपका 28 U है. तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ 28 U. तो M1 कैसे निकालेंगे? 5 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड में 2 दैट इज इक्वल टू 70 U. इसको 70 U मानेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज using the equation of state PV is equal to nRT, show that at a given temperature the density of a gas is proportional to the gas pressure P. तो PV किसके इक्वल होता था बेटा? PV is equal to nRT. PV नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. ठीक है. तो ये m बाय कैपिटल M आ जाएगा. ठीक है. अब बेटा यहाँ से P वैल्यू निकाल लो आप, V नीचे चला गया. तो इसको हम मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. ठीक है. पुटिंग द वैल्यू हेयर DRT बाय M. और अब आपको डेंसिटी निकालनी है तो आप इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT. इफ़ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ओके. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 35 ml of oxygen that was collected at 6 degree Celsius and 758 mm pressure. Calculates its volume at NTP. ठीक है. अब वॉल्यूम आपको गिवन है बेटा, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर आप निकाल सकते हो. इसको केल्विन में चेंज करो. 6 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो इट मीन्स 273 आप यहाँ पे ऐड करोगे. वॉल्यूम आपको निकालना है. P2 आपका 760 mm है.
T2 आपको निकालना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, दैट इज 273 केल्विन। ओके, देन अप्लाई द फॉर्मूला P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है। एंड पुटिंग दिस फॉर्मूला हेयर, this is 760 multiply V2 divide by 273 is equal to 758 multiply 35 divided by 279. Then V2 is equal to 758 multiply 35 by 279 multiply 273 by 760 and the answer is 34.16 ml. Okay, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। Now next is the value of universal gas constant R that is same for all the gases। अब R की वैल्यू सबके लिए सेम होती है बेटा, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। देन व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है आपको पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ से R निकालो बेटा, R इज इक्वल टू PV बाय NT, ये बन जाएगा। प्रेशर को आप पास्कल से मेजर करते हो, ठीक है। अब V बाय N क्या है, V बाय N होती है वॉल्यूम पर मोल इन मीटर क्यूब पर मोल। टेम्परेचर आप केल्विन में यूज़ करते हो, यूनिट्स ऑफ आर दैट इज़ PA मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल और जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड आर इज द वर्क डन पर मोल पर केल्विन। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। सामने बेटा, see this question beta, a mixture of dihydrogen gas and dioxygen at 1 bar pressure that contain 20% by the weight of dihydrogen, calculate the partial pressure of dihydrogen। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे डाईहाइड्रोजन का। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिक्वायर्ड। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, फिर हम इसको निकालेंगे। देखो कैसे, a mixture of hydrogen and oxygen that contains the 20% by the weight of hydrogen। 20% by weight of hydrogen means hydrogen is 20 gram and oxygen is 80 gram। number of moles कैसे निकालेंगे, 20 by 2 that is 10 per mole। okay, moles of oxygen क्या है, 80 by 32 that is 2.5 mole। okay, mole fraction कैसे निकालेंगे, mole fraction is equal to number of moles of hydrogen डिवाइड बाय number of moles of hydrogen प्लस number of moles of oxygen। टोटल मोल्स होते हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं बेटा, 10 प्लस 2.5 दैट इज 0.8 मोल्स। ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है बेटा, PH2 इज इक्वल टू P टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। PH2 इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1 बार है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.8 है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, विच लॉ इज अप्लाई हेयर, वो लॉ, Rolle's law। okay, now next question is, for an ideal gas how does the plot of log P versus log V differ from that of log V versus log T, explain। देखो बेटा, हम कैसे प्लॉट करेंगे, log P versus log V that is based on the Boyle's law, where the log V versus log T that is based on the Charles law। क्योंकि Boyle's law क्या कहता है, PV is equal to constant। ओके, Charles law क्या कहता है, V by T is equal to constant। ओके, log of P plus log of V is equal to log of K। ओके, log of V minus log of T is equal to log of K। इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, log of P is equal to माइनस log of V प्लस log of T, log of K सॉरी। ओके, सेम इस केस में बेटा log of V निकाल लो यहाँ से इस रिलेशन से, दैट इज इक्वल टू log of T प्लस log of K, और दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस दैट प्लॉट द ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम ग्राफ देखते हैं बेटा, दिस इज स्ट्रेट लाइन बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज नेगेटिव साइन हेयर, बट log of v वर्सेज log of यहाँ पे हम बेटा log of लेंगे v वर्सेज log of t, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पे t आएगा बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Use the information and the data given below to answer the question A to C, and stronger intermolecular forces result in the higher boiling point. Strength of London forces increases with increase the number of electrons in the molecule. Boiling point given है बेटा HF, HCl, HBr and HI that are 293 केल्विन पे है, 189 केल्विन, 206 केल्विन एंड 238 केल्विन, ये इन सब का गिवन है. ठीक है. Now, which type of intermolecular forces that are present in the molecule HF, HCl, HBr and HI? देखो बेटा, जो आपका HCl, HBr और HI है, इसमें किस टाइप की फोर्सेस होती हैं? तो बेटा इन तीनों में डाइपोल डाइपोल लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होती है मोस्टली. लेकिन HF के अंदर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल भी, लंडन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज HF मोलिक्यूल्स दैट कंटेन्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. And for hydrogen bonding, what are the conditions required here? One is electropositive elements, that is hydrogen, and another is highly electronegative elements, that is fluorine, nitrogen and oxygen. So it will form the hydrogen bond easily. बट HCl, HBr एंड HI डाइपोल डाइपोल लंडन फोर्सेस ये प्रेजेंट होती हैं बिकॉज इन मोलिक्यूल्स में बेटा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस इज द आंसर. Now next is looking at the trends of boiling point of HCl, HBr and HI. Explain out of dipole-dipole interaction, London interaction, which one is predominate here? देखो बेटा इनमें से कौन सा प्रेडोमिनेट होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके. बट डाइपोल मोमेंट शुड बी डिक्रीज फ्रॉम HCl से HI की तरफ डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दैट शुड डिक्रीज फ्रॉम HCl टू HI. So boiling point on moving from HCl to HI that will be increased because London forces are predominate here. London forces increase होती हैं क्योंकि number of electrons in a molecules is also increases. So the number of electrons is increasing from HCl towards HI. HCl से HI की तरफ क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड हाईएस्ट? why is the boiling point of hydrogen fluoride highest while that of hydrogen chloride lowest? ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. क्यों होता है बेटा? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एज वेल एज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF. दैट्स वाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई. तो बेटा दो रीज़न होते हैं, एक तो ये फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है. दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है. Okay students, so these are very important questions related to the chapter states of matter. Please revise all these questions and do in your fair notebook. Thank you beta.